Good morning, students. So, in the previous class, we have already discussed about electrovalent bonds. Now, the next one is covalent bonds. In 1919, there was a scientist named as Langmuir. He actually introduced the term covalent bond. What he has said, according to him, that when atoms can combine by sharing of electrons between them, so the bond which will form between them is called as covalent bonds, and there is equal contribution of the electrons of both the atoms in the sharing. Means both the atoms will acquire equal number of electrons in sharing to acquire their nearest noble gas configuration. So what we can say that the bond formed by mutual sharing of electrons between the combining atoms of the same or different elements is called as covalent bond. Students, on the basis of number of shared pair of electrons, there can be double bonds, triple bonds, and single bonds. Means there can be a single covalent bond, or double covalent bond, or triple covalent bond. So generally, one pair of electrons, the two atoms share one electron pair. But if after sharing even one electron pair, they do not acquire their nearest noble gas configuration, then they can share their two electrons also and even three electrons also. So if two atoms share one electron pair, the bond which is formed in between them is called as single covalent bond, and it is represented by one dash. Like one chlorine atom forms a single bond with another chlorine atom because they share only one electron. So we can represent one Cl slash Cl. So this slash represents single bond. If two atoms share two electron pairs, bond is known as a double covalent bond and is represented by two dashes, one dash up upper and one dash niche. So like equal sign. So this is double bond. For example, oxygen, one atom of oxygen have six electrons, another atom of oxygen also have six electrons. So they share their two electrons and can achieve their nearest noble gas configuration, that is 88 electrons. And because they are sharing here two electrons, two pair of electrons, so that is why they have double bond. So O double bond, the another O. So in this way we can represent them. If two atoms share three electron pairs, then bond is known as triple covalent bond and is represented by three dashes. Like nitrogen, one atom of nitrogen form a triple bond with the another atom of nitrogen because nitrogen have five valence electrons, so they require three more electrons. So one atom of nitrogen share its three electrons with the another atom of nitrogen, and the another one also share its three electrons with the first nitrogen. So in this way they acquire 88 electrons, they both acquire 88 electrons, and this bond is triple bond. Clear? So on the basis of number of shared pair of electrons, we can have single bond, double bond, and triple bond. Clear? So here you can see like here carbon. Carbon can form four bonds. You know the carbon is tetravalent. We have studied in the previous topic also that carbon is tetravalent. If we write the electronic configuration of carbon, it is 2s2 and 2p2. No, so s2 ns2 np2. So it means nitro carbon have four valence electron. So attain the noble gas electronic configuration, carbon require four more electrons. So here you can see carbon is forming one bond with hydrogen. So hydrogen have one electron and this hydrogen also have one electron. Carbon have four electrons. This one, this one, this one, and this one. In one bond, in one this dash, there are two electrons. One is of carbon and another one is of hydrogen. So hydrogen will use this electron also and it will use this electron also and form a single bond. So hydrogen will, reach to its nearest noble gas electronic configuration, that is 2. You know, this hydrogen also have one electron, but it is sharing its one electron with carbon, so it will also have two electrons. Now this carbon is having 1, 2, 3, 4 electrons only, and two electrons are left here. So with these two electrons, carbon will form double bond. Means here carbon is sharing its two electron with this carbon,
and this carbon is also sharing its 2 electron with this carbon. So in this way, 1 2 3 4 5 6 7 8, this carbon will reach to its nearest noble gas configuration, means 8 electrons, and this carbon also 1 2 3 4, and here it is forming one single bond with hydrogen and one single bond with hydrogen, means sharing one electron with this hydrogen, sharing one electron with this hydrogen, getting one electron from this hydrogen and getting one electron from this hydrogen. So this will also reach to its noble electronic configuration, and that is 8. So here nitrogen is having 5 electrons, so it will share its 3 electrons with this 3 with this nitrogen, and this nitrogen will also share its 3 electron with this. So in this way, because 3 electrons they are sharing, so means 2 are still left. This nitrogen is having 2 electron and this is also having 2 electrons. So 1 2 3 4 5 6 and 2 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 means what I'm trying to say, that nitrogen is having 5 valence electron and it is sharing 3 electrons only, means 3 electrons are only participating in bonding, 2 are still left. So the electrons which are left, they are called as lone pair. Okay, so nitrogen is having one lone pair, means 2 electrons are here. Nitrogen is having, which are not participating in the bonding. So total it will have 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so in this way, by forming the covalent bonds, they can complete their valence shells, they can achieve their nearest noble gas configuration. So Lewis has, decided. Lewis told us that how to represent these covalent bonds. Lewis has given the theory that how the covalent bonds form, किस तरीके से bonding होती है और कैसे they share their electrons. There are so many theories. Lewis की theory में there were some shortcomings also. बिल्कुल perfect नहीं थी उसकी theory, तो बाद में और theories भी आई थी. That all theories we will study in this chapter, but right now we are starting with Lewis theory. So Lewis ने किस तरीके से covalent bond को represent किया, so that is called as Lewis dot structure. क्या बोला उसने अपनी theory में, उसने बोला कि जो main points थे वो क्या थे, कि each bond is formed as a result of sharing of an electron pair between the atom. If it is a single bond, it means there is one electron pair, one shared electron pair. If there is double bond, then it means there are two shared electron pair. If triple bond, then it means there are three shared electron pairs. Okay. Then each combining atom contributes one electron to the shared pair. Means in one bond, if there is one bond, so two atoms are sharing, so both the atoms will give one electron to that bond. Means in one dash or in one bond there are two electrons, because each atom will give one electron to that. Then both the combining atoms attain the stable outer shell noble gas configuration as a result of sharing of electron. Resultant ये होगा. So in this way they can complete their octet. Students, जो भी हमारा central atom होगा इसमें, उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, मतलब वो अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा. हालांकि लुईस ने बाद में ये देखा कि जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करें, एक्सेस भी हो सकते हैं इसमें. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थी, उसमें भी उसने देखा कि एक्सेस भी हो रहे थे. कुछ हमारे एटम्स ऐसे थे जिसमें से बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते थे, यानी 8 से ज्यादा हो जाते थे. बट क्या है कि मिनिमम 8 तो होंगे ही होंगे, यानी जो सेंट्रल एटम है वो मिनिमम अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा ही करेगा. तो सेंट्रल एटम अब कौन सेंटर में होगा और कौन साइड्स में होगा, कॉर्नर्स में होगा, उसके लिए लुईस ने कुछ रूल्स बताए. क्या है वो रूल? सेंट्रल एटम का रूल कौन है? लाइक अगर मेरे पास सपोज आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन जो है वो सेंटर में रहेगा. तो जो सेंट्रल एटम होता है उसमें या क्या क्या हो सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो सकती है, और या फिर वो भी सेंट्रल एटम हो सकता है जो लीस्ट नंबर में हो. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे आप, कार्बन इज देयर इज ओनली वन एटम ऑफ कार्बन, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, है ना. या फिर उसका साइज लार्जेस्ट हो सकता है, साइज बड़ा हो सकता है, वो भी सेंट्रल एटम हो सकता है. या फिर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो सकता है, वो भी सेंट्रल एटम होता है. यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि लीस्ट नंबर कौन है, सबसे कम जो है वो कौन है, वो सेंट्रल एटम होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो सेंट्रल एटम होगा. अगर ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ कुछ वो ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है या फिर लीस्ट नंबर भी नहीं, नंबर भी बराबर है, तो हम उनका साइज देख सकते हैं या फिर उनका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं. तो बेसिकली ये 4 चीजें होती हैं
जो डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द सेंट्रल एटम। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, सो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही मिल जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आप बीच में रखेंगे, बट रिमेंबर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। वो कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेंट्रल एटम्स नहीं होते, वो हमेशा कॉर्नर में ही रहते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज क्वाइट हाई, तो वैसे भी उसे कॉर्नर में ही रहना चाहिए। बट हाइड्रोजन भी जो है वो सेंट्रल एटम नहीं होता, वो साइड्स में ही रहता है। क्या, लेकिन जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है, ये आपके सेंट्रल एटम हो सकते हैं। लाइक नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्लोरीन की भी हाई होती है, बट दे कैन बी द सेंट्रल एटम आल्सो। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद सेकंड रूल क्या है कि जब भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वट एवर बी द सेंट्रल एटम, उसका हमें ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है। ऑक्टेट तो कंप्लीट एट एनी केस होगा ही होगा, बट कई बार ऑक्टेट से ज्यादा भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऑक्टेट से ज्यादा भी कई बार हो जाते हैं, आप देखोगे कि एक्सेस ऑक्टेट वाले आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, जो कॉर्नर वाले एटम्स है, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द रूल्स, तो सबसे पहले हमें जो कॉर्नर में एटम्स होते हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, बट अदरवाइज ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद वी विल मूव टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम एज आई हैव टोल्ड यू कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड समटाइम्स कैन more than 8 electrons also. सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। जो भी हमारा सेंट्रल एटम होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को अटेन करने की कोशिश करता है। लाइक ऑक्सीजन जो है उसकी कोवेलेंसी है 2, सल्फर की है 6, नाइट्रोजन की है 5। हालांकि नाइट्रोजन बॉन्ड सिर्फ 4 ही बनाता है, एक लोन पेयर होता है उसमें, बट ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी है 5, वो 5 बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन की 4 है, वी ऑल नो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है मैक्सिमम। अदरवाइज ऑक्सीजन 1 और 2 दोनों बॉन्ड्स बना सकता है। सल्फर जो है हमारा, उसकी कोवेलेंसी 6 है, इट मींस वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, बट 2 4 6 बॉन्ड्स बना सकता है डिपेंडिंग कि किसके साथ अटैच है। नाइट्रोजन हमारा 3 और 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ऑक्सीजन 3 सॉरी कार्बन हमारा 4 बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम भी, और जनरली भी वो 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बनाता है। क्लोरीन जो है हमारा वो 4 बॉन्ड्स बना, की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 7 होती है, तो वो 1 3 5 7 इतने बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ये इनकी, लेकिन क्या कोशिश होती है हर एटम की कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी अटेन करे, यानी वो जितने ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, एंड समटाइम्स ऑक्टेट से भी ज्यादा हो जाता है उसका। अच्छा, और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारा कभी भी पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर, तो दैट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर आएगा, और जो भी नेगेटिव चार्ज होगा अगर हमारा, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉर्नर वाले एटम के ऊपर आएगा। आपको अभी समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बाय ऑल दीज थिंग्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पे रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा कॉर्नर वाले एटम्स पर रहता है। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब हमें रूल्स के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको एक पर्टिकुलर मेथड बता रही हूँ, इस मेथड को नोट डाउन कर लो, और जब भी आप कभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो इसी तरीके से बनाओ। वाई आई एम सेइंग इस तरीके से बनाओ, बिकॉज जो सिंपल सिंपल कंपाउंड्स है लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इनकी तो आप बनाते आ रहे हो और बना भी लोगे, बट जब कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ एक्सेप्शन वाले आ जाते हैं, कुछ चार्जेस वाले आ जाते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखे वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट इफ यू विल फॉलो दिस रूल देन आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, first of all whatever atoms you are having in the compound, like if the compound is suppose NF3 compound hai, so you will write their symbols, है ना, like NF3 you will write the formula with the symbols, and you will calculate their valence share, total valence share आप count करोगे, that is Q से represent करते हैं। so Q you will calculate, Q is the valence electron of the atom। so nitrogen के पास there are 5 valence electron and fluorine have 7 valence electron, so 7 3s are 21 प्लस 5 नाइट्रोजन के, तो कितने हो गए हमारे पास 21 एंड 5 26 हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब अगर हमारे कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दोगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे। कितने, जो जैसे हमने 26 काउंट करा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम एक प्लस कर देते यानी 27 हो जाते, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम एक माइनस कर देंगे यानी 25 हो जाएगा। बट हेयर on NF3 you can see there is no any charge, तो आपके 26 के 26 ही रहेंगे ये। then you will calculate the
बॉन्ड पेयर कि कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जनरली जो होते हैं हम एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, पहले एक एक बॉन्ड बनाना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है। मींस नाइट्रोजन विल बी इन बिटवीन, क्लियर, एक बॉन्ड वो एक फ्लोरीन के, नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन विल बी इन बिटवीन, बिकॉज नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज लेसर देन फ्लोरीन, एंड अदरवाइज आल्सो एज आई टोल्ड यू कि फ्लोरीन हमेशा कॉर्नर में रहता है। तो आप नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड एक फ्लोरीन का बनाइए, एक दूसरे के फ्लोरीन का बनाइए, और थर्ड फ्लोरीन का बनाइए। आपने एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया तीनों के साथ, ठीक है, बॉन्ड बनाया, अभी मैंने डॉट्स नहीं बनाए हैं। आई हैव फॉर्म द स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये लाइक यहाँ जैसे आप देख सकते हो ना, ये आई मेड दिस बॉन्ड्स, बस ये डॉट डॉट्स अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड एंड थ्री बॉन्ड। सो व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, देखो, what I have said you that in one bond there are two electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So out of 26, 20 electrons has been, 6 electrons has been taken participate in bonding. तो आपके पास कितने हो गए bond pair electrons, कितने हो गए 2. Now you have to calculate lone pair of electrons. Lone pair मतलब total valence electron, that is Q minus Bp यानी bond pair of electrons. So total हमारे पास कितने थे 26, उसमें से हमने bonding में हमारे कितने electrons ने participate किया है 6, तो बचे हमारे पास कितने 20. अभी जो 20 हैं these are the lone pair of electrons. इन लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ यूज करेंगे, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टूडेंट्स दो जगह यूज होते हैं, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में और दूसरा बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जो कॉर्नर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दिस कॉर्नर वाला इलेक्ट्रॉन मींस दिस फ्लोरीन इज हैविंग 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे चाहिए कितने 8, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने आउट ऑफ 20 यहाँ फिल कर दिए। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Still we are having more lone pair of electrons, so 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ लगा दिए, इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ लगा दिए, इसके पास भी 8 हो गए। तो हमारे पास we were having 20 lone pair of electrons, out of which 6 we have given to this fluorine, 6 we have given to this, and 6 we have given to this. तीनों का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टिल 2 more lone pair of electrons are left, वो अब हम नाइट्रोजन को दे देते हैं, सेंट्रल एटम को दे देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस विल बिकम आवर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो हम अदरवाइज भी कर लेते, इतनी कहानी करने की क्या जरूरत थी हमें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज नाइट्रोजन के पास जो कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास वो होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक एक की बॉन्डिंग कर लेगा। बट अगर आप ये प्रैक्टिस में रखोगे तो आगे जो आप और कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हो वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, O2, दिस ऑक्सीजन। यहाँ भी इट्स वेरी सिंपल, ऑक्सीजन के पास द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6, so 6 2 is 12, so total number of valence electrons we are having 12. अब हम क्या करेंगे, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्केलेटन में आपको पहले सिंगल बॉन्ड ही बनाना होता है, तो हमने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, पहले यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है, बट आई एम टेलिंग यू कि एक सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद हमने देखा कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास 12, 12 माइनस 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन से फिलिंग करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नहीं है, पहले हम 6 बना देंगे। अब बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो 1 2 3 4 हमने इसको दे दिए। अब हम काउंट करते हैं, देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन का तो हमारा जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका 1 2 3 4 5 6 ही है इसके पास। तो अब क्या करें, क्या बोला था मैंने आपको कि लोन पेयर जो है या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूज होता है या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 लोन पेयर उठाए और उसका एक और बॉन्ड बना दिया, तो बन गया डबल बॉन्ड। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, लेकिन इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप सिंपली डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, इट इज वेरी सिंपल, कि आपको पता ही है कि क्या होता है हमारा
Oxygen there are 6 valence electrons, and another oxygen is also having 6 valence electrons, so they can share their two electrons and can form a double bond and simply हमारा edit पूरा हो जाएगा. But as I have told you कि हम क्या कर रहे हैं, we are practicing. हम और कंपाउंड्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो कॉमन रहे. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी बना लेंगे. हाइड्रोजन में क्या है, टोटल नंबर हाइड्रोजन इज हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2. एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 0. तो आपको लोन पेयर बनाना नहीं है. ऑलरेडी यू कैन सी दिस हाइड्रोजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो देयर डुप्लेट इज कंप्लीट. ठीक. अब बात करते हैं थोड़े से आगे बढ़ते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज सपोज H3O plus. I have drawn the structure. No, I have not drawn the structure. चलो कोई बात नहीं. H3O plus. Student listen carefully. Suppose हमारा compound है H3O plus. This is a compound. So first of all, what we will do, as we have done in our earlier compounds also, we will calculate the valence number of electron. Hydrogen. Valence number of electron is 1, but there are 3 atoms of hydrogen. So 1 into 3, 3. Oxygen, valence number of electrons 6. So it will become 9, but because there is having one positive charge, so we will minus 1, so it will become 8. The number of valence electrons are 8. Now, bonded pair of electrons. Bond pair of electrons, for calculating the bond pair of electrons, first we will draw the skeleton structure of H3O plus. In skeleton structure of H3O plus, oxygen will be the center atom, because as I have told you that hydrogen never come in center, it always remain in the corners. So all the 3 hydrogens will become at the corners. Clear? And it means oxygen is forming here 3 bonds. With different hydrogen, it is forming 3 bonds. So the total number of bond electrons are 1, 2, 3, 4, 5, 6. We were having 8 valence electrons, out of which 6 electrons has been participated in the bonding. So we will subtract 8 minus 6, so it means 2 lone pair are left. Now we will try to complete the duplet or octet. So first we will come to the corner. as मैंने बोला था कि आपको corner atom का सबसे पहले complete करना होता है octet. तो corner पे तो यहाँ पे hydrogen है and they have duplet only. तो आपने देखा first वाला hydrogen duplet complete, second वाला hydrogen single bond बनाया है duplet complete, थर्ड वाला हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट. तीनों का अगर डुप्लेट कंप्लीट है तो ये जो हमारे पास एक लोन पेयर बचा है वो हम किसके ऊपर डाल देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर बना देंगे. अब ऑक्सीजन की अगर हम काउंट करें तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1, 2, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ 3, 4 एंड थर्ड वाले के साथ 5, 6 और 2 उसके ऊपर लोन पेयर है 8. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास भी हो गए. सो इन दिस वे स्ट्रक्चर हमारा बन गया. कैसे बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 डॉट और बाकी एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन एंड थर्ड कॉर्नर में थर्ड हाइड्रोजन. क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम मिसिंग ब्लैक बोर्ड है बट व्हाट टू डू, है ना, आपको सुनना पड़ेगा, मेरा बात सुन के समझना पड़ेगा. टेक अ पेन एंड पेंसिल एंड राइट डाउन व्हाटएवर आई एम सेइंग, तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आई एम टेलिंग यू ऑफ, चलो यहाँ पे CO3 बना हुआ है तो CO3 का ही पहले समझा देते हैं आपको. ठीक है, CO3 बिकॉज यू कैन सी ऑल्सो राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. तो CO3 में देखो हमने सबसे पहले क्या किया, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे. कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 6 3s are 18 एंड 2 माइनस चार्ज. सो माइनस चार्ज हमें क्या करना होता है, अगर माइनस का चार्ज है तो प्लस करना होता है. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग 24. नाउ वी विल फॉर्म अ स्केलेटन स्ट्रक्चर. स्केलेटन स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, एक कार्बन को सेंटर में रखेंगे बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. ऑक्सीजन तीनों कॉर्नर्स में आ जाएंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. आपको मैंने बताया था स्केलेटन स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, सिंगल बॉन्ड बनाना होता है पहले. तो आपने एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो सिंगल के हिसाब से अगर आप देखो तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिंगल ही है यहाँ पे, ये डबल नहीं है, अभी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करो इसे सिंगल. तो 6 हो गए. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे, 24 माइनस 6 कर दो आप. ठीक है, माइनस 6 कर दिया आपने तो हमारे पास ये तो बहुत सारे बच गए. कितने बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. तो कोई बात नहीं, अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टूडेंट्स कहाँ काम आने वाले हैं, 2 चीजों में. एक तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट और इन मेकिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जैसी भी रिक्वायरमेंट हो. तो हमें स्टार्ट किससे करना है, कॉर्नर से. तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास आएंगे 6, इसको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 6 और बचे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास बैलेंस। 6 इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया हमने 1 2 3 4 5 6, और इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं सेंट्रल एटम की। उस बेचारे गरीब को तो बोल नहीं सकते ना, तो इसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है अभी। तो 1 2 3 का माइनस चार्ज जो है वो हम कहाँ लगाते हैं, कॉर्नर एटम पे, है ना। तो माइनस वाला जो चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर एटम पे। क्लियर? ठीक। तो इसको क्या एक और बार समझाऊं, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Clear, students? Understood? So first of all, what we have done, the first step is counting the total number of valence electrons and the total number of bond pair of electrons and the total number of lone pair of electrons. Okay, first of all, we will count the valence number of electrons, then we will form the skeleton structure. Then after making the skeleton structure, we will calculate the bond pair of electrons, and then we will complete the octet of, with the help of lone pair of electrons, and we will start from the corners. And as I have told you that क्या होगा हमारा जो चार्ज है, माइनस चार्ज, दैट विल बी ऑलवेज एट द कॉर्नर एटम्स, है ना, कॉर्नर वाले एटम पर आएगा। तो ये जो माइनस का चार्ज है ये पूरा हमने इस कंपाउंड के ऊपर लगा दिया है। एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑक्सीजन में ना हमेशा याद रखो, व्हेन ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पेयर जो है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हो तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। 4 हो तो कोई माइनस चार्ज नहीं होता, और 6 है यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के पास एक एक माइनस चार्ज है। और ये माइनस एंड माइनस हमारा +2 चार्ज है, ये बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में भी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चार्ज आता है हमारा, ठीक है। तो वैसे जब भी ऑक्सीजन, आप याद रखो, जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक तरीके से ये भी आप सोच सकते हो, तो उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आता है। डबल बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो, अगर किसी केस में 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसके पास प्लस चार्ज आता है, यानी अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो यानी 1 लोन पेयर बचा हो तो प्लस चार्ज आता है। तो हियर ऑन 2 ऑक्सीजन वी आर हैविंग 1 माइनस चार्ज, so overall here will be -2 charge. Yeah, so in this way you can form the Lewis dot structure. ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, देन स्कैन। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास है 4 एंड ऑक्सीजन के पास है 6, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। देन वी विल ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर इज सिंगल बॉन्ड। So total number of valence electrons we were having 2, so 10 minus 2, so it means lone pair we are having 8. With the help of that 8 electrons, first of all we will complete the octet of corner atom. So यहाँ से 1 2 3 4 5 6 electrons हम इसको दे देंगे। अभी assume करो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, there is only single bond. So 1 2 3 4 5 6 और एक सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसका तो कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्टेट। अब बात करें कार्बन की। कार्बन के लिए कुछ हमारे पास बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं बचे हैं, हमारे पास वी वर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ना, 8 लोन पेयर हमारे पास बचा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 बचे थे। 6 हमने कार्बन को दे दिए, और जो 2 बचे हुए हैं वो हमने 6 हमने ऑक्सीजन को दे दिए, और बचे हुए 2 हमने कार्बन को दे दिए। अब एज्यूम करो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 ही हुए अभी तक तो बस। तो अब उसको तो क्या चाहिए, उसको तो 8 चाहिए। तो अब आपको क्या बोला था मैंने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक लोन पेयर इसका यहाँ से उठेगा और एक बॉन्ड बना देगा, एक लोन पेयर यहाँ से उठेगा और एक और बॉन्ड बना देगा। सो इन दिस वे देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन की अगर आप बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो इन दिस वे वी कैन मेक द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इससे हमारी फिर मिस्टेक भी नहीं होगी। एक और आपको करा देती हूँ, देन रेस्ट ऑफ द structures you will practice at your home by your own. Now there is the compound NO2 minus. NO2 minus. So step 1 is first of all calculate the valence number of electrons. So nitrogen के पास valence number of electrons कितने हैं, 5, oxygen 3 into 6, okay, so it will become 18, and there, because there is one minus charge, so we will plus 1 electron, so total number of electrons will become 24.
4. Clear? Then we will draw the skeleton structure, means nitrogen and then single bond oxygen, single bond oxygen, because नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो कहाँ रहेगा, कम होने की वजह से ऑक्सीजन से सेंटर में रहेगा, है ना. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो ऑक्सीजन कॉर्नर्स में रहेगा. अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 एंड 1 2 4. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 20 में से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने माइनस कर दिए, है ना. तो ऑक्सीजन हमारे पास, हाँ, NO2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना हम, NO3 का नहीं, ठीक है ठीक है. सो हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 24. सॉरी, ऑक्सीजन, आई थॉट कि हम NO3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं NO2 में. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थे हमारे पास, 5 + 12 + 1, सो इट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वैलेंस. अब उसमें से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. तो उससे आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम को फुलफिल करना शुरू करोगे. सिंगल बना हुआ है तो 1 2 3 4 5 6. 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दे दिए, बचे कितने अभी भी हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स. 6 हमने इसको दे दिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इसको दे दिए. 6 इन 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए, 2 आर स्टिल लेफ्ट. तो वो अब हमने अपने सेंटर एटम को दे दिए. ठीक है, सेंटर एटम को दे दिए. तो अब हमारे जो कॉर्नर वाले ऑक्सीजन है उनको हमने 6 तो दिए, और 2 जो है सिंगल बॉन्ड की वजह से उनके पास बीच में पहले से ही थे, सिंगल बॉन्ड बना रखा था उन्होंने. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 दिए थे ना हमने. और इसमें को भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और एक इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था नाइट्रोजन के साथ. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके भी कंप्लीट हो गए. लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड इससे बनाया तो 1 2, एक सिंगल बॉन्ड इससे बनाया 3 4, 2 हमने लोन पेयर के दिए थे, 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेस. तो अब क्या होगा, एक हमारा बॉन्ड पेयर, एक जो है यहाँ से लोन पेयर टूटेगा और उसको डबल बॉन्ड बना देगा, है ना. तो डबल बॉन्ड बनाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा. हाँ, नाइट्रोजन के पास जरूर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है. आपको मैंने बताया था कि जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज. और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता. बट माइनस चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, कॉर्नर में रहता है, इसलिए आप इसको यहाँ कॉर्नर में कर दोगे. ठीक है. वैसे स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का भी मेथड होता है, वो मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी, यहाँ जरूरत नहीं है. सपोज एज्यूम करो कि हमारे पास NO3 होता, मेरे पास इस वक्त राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दैट कंपाउंड, सो कोई बात नहीं. सपोज NO2 की बजाय वी आर हैविंग सपोज NO3. ठीक है, तो स्टेप सारे सेम रहेंगे. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 + 18 + 1, तो इट विल बिकम 24. बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, N आपका सेंटर में हो गया, तीनों ऑक्सीजन कॉर्नर्स में आ गए. तो 3 बॉन्ड्स बना लिए नाइट्रोजन ने, तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड. तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 24 - 6, आपके पास 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए. ठीक है, 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बच चुके हैं. नाइट्रोजन आपका मान लेते हैं यहाँ सेंटर में, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, और नीचे एक ऑक्सीजन. अब बचे हुए जो आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें आपने पहले साइड वाले ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, फिर नीचे वाले ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, फिर इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. तीनों को आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और तीनों ने सिंगल बॉन्ड भी बना रखा है. तो तीनों का जो है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. बट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन को कोई लोन पेयर तो कोई बचा नहीं उसके लिए. 18 लोन पेयर थे, वो आपने तीनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. और उसने अभी तक कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक. सो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास अभी तक. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो कोई भी एक कॉर्नर वाला, हमारा ये वाला मान लेते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है या ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये अपने 2 लोन पेयर्स निकालकर एक बॉन्ड बना लेगा, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ. तो नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6, और थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. ठीक. अब बात करते हैं हम किसकी, चार्ज की. अगर आप देखो तो एक ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया, यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो नीचे वाला ऑक्सीजन होगा आपका NO3 में, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों के पास एक एक माइनस चार्ज आना चाहिए. बट अगर हम देखें तो NO3 में ओवरऑल -1 ही होता है चार्ज.
NO2 में भी माइनस है, NO3 में भी माइनस का ही चार्ज होता है, ओनली वन माइनस। तो वन माइनस कैसे होगा, उसके लिए हमें पूरा यहाँ अब हम नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो होता है, दैट इज व्हाट, formal charge can be defined as a difference between the valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis dot structure। ये तो उसका definition हुआ, बट हम formal charge निकालते कैसे हैं? Formal charge is equivalent to valence electrons minus lone pair of electrons minus bond pair of electrons upon 2। This is the formula। अब अगर आप देखो NO3 में जो हमारा ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। कौन से वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं हम? जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी बात करते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हुए, कितने होते हैं? 6। उसमें से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास? वो भी 6 हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके? 6 वाले के पास 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खाली सिंगल बॉन्ड बनाता है ना वो, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाला ऑक्सीजन सपोज हम मान के चल रहे हैं, तो सो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसका? 1 2, 2 अपॉन 2 1 एंड 6 माइनस 6 0। 6 माइनस 6 कितना आ गया हमारा? 6 minus 6 is 0 and 2 upon 2 is 1। So 0 minus 1 is equivalent to minus 1। तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास माइनस 1 चार्ज आ गया। तो थर्ड वाला ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका भी सेम ऐसे निकलेगा, उसके ऊपर भी एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। इस एटम की अगर हम बात करें तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। सो माइनस 4। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, इस वाले ऑक्सीजन के? 1 2 3 4। सो माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 दैट इज 2, 4 अपॉन 2 दैट इज 2। सो 2 माइनस 2 इक्वल 0, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस 1 चार्ज, नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी माइनस 1 चार्ज। तो ओवरऑल तो NO3 पे माइनस 2 चार्ज होना चाहिए। बट चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नाइट्रोजन को भी कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5। ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ इफ यू सी NO3 में, NO3 में जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 0, एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक उसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो 1 2 3 4, और 2 उसने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 अपॉन 2 यानी 4। सो 5 माइनस 4 यानी 1 प्लस 1। तो नाइट्रोजन के ऊपर भी कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर? प्लस 1। एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस 1, एक ऑक्सीजन पे माइनस 1 और थर्ड पे भी माइनस 1। सो टोटल ओवरऑल चार्ज कंपाउंड के ऊपर कितना हो जाएगा? -2 + 1 दैट इज -1। स्टूडेंट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट NO3, और अभी आपकी स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज ऑफ NO2। So don't get confused, okay? So in this way we can calculate the formal charges also। So this is all about the Lewis dot structure and formal charges। Today I am going to upload one assignment also, please do practice, and if any problem that we will discuss in next class।